Hello, students. Welcome back. How are you all? As you know, we have completed our half part in this chapter, The Layers of the Earth, page number 36. So, today I am going to complete remaining part of this chapter. Students, आपको पता है मैंने आपको इस चैप्टर में लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में हमें डिस्कस करना था और हमने किया। मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है वो 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। तो उनके जो नेम्स हैं वो ये है कि लिथोस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर है। अब इनकी फीचर्स मैंने आपको बताए और हमने लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बारे में हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। और लिथोस्फेयर इज़ द लेयर ऑन विच वी लिव एंड atmosphere it is the layer where the various gases which are essential for life exist। तो ये दोनों जो लेयर्स है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन सी जो गैस है वो कितनी है। हम इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर जो है, it is the total amount of water present on earth in all the 3 forms, that is solid, liquid and gas. Water covers 71% of the earth's total surface in the form of oceans, seas, rivers and other water bodies. Water is present in high quantities as the poles in the form of solid ice. It also constitutes roughly 1% of the water vapor in the form of clouds and fog. The first life forms are believed to have evolved in water. Every life form of earth is directly or indirectly dependent on the hydrosphere. Hydrosphere plays a very crucial role in regulating Earth's temperature, climate. Amount of water present on Earth is believed to be constant since its formation. Water moves through the hydrosphere in a cycle. This cycle is called a water cycle. तो बच्चों, आज मैं आपसे एक चीज़ ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जो हाइड्रोस्फेयर जो है ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है जो हमारे अर्थ पे है, ये 3 फॉर्म्स में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में है। और आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊँ कि अर्थ जो है उसमें 71% जो वो टोटल सरफेस जो है वो ओशियन, सीज, रिवर्स इन सब का है। इवन मतलब आप ये मान सकते हो कि 71% पानी है जो अर्थ पे है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये कि सॉलिड आइस में सबसे ज़्यादा पानी की जो क्वांटिटी है वो सॉलिड आइस में है। और 1% ऑफ द वाटर जो है वेपर फॉर्म में है, जैसे क्लाउड्स एंड फोग। और जो हमारी लाइफ है ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेड है किस पे? वाटर पे, पानी पे। तो ये हाइड्रोस्फीयर इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि एक इंसान को या किसी भी एनिमल को सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हाइड्रोस्फीयर एक किस तरह का है कि अर्थ जो टेम्परेचर क्लाइमेट का है वो भी इसी से काफ़ी तक रेगुलेटिंग होता है। और हमारा मानना ये है कि ये जो वाटर जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो हाइड्रोस्फीयर कितना ज़रूरी है। और ये जो वाटर मूव्स थ्रू द हाइड्रोस्फीयर इन अ साइकिल, दिस साइकिल इज कॉल्ड ए वाटर साइकिल। हाइड्रोस्फीयर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें है बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना है। तो बायोस्फीयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स on our planet, from microorganism to the giant whale. All living things are part of the biosphere. This is the sphere which interact with
all the other sphere, it depends on them for survival. Scientists believes that between 3 millions and 30 million species might exist on the earth. But we have been able to identify only 1.3 million species till date. Although biosphere is smaller than all the other spheres of the earth, yet it has been instrumental in bringing about change in other spheres. The present atmosphere, for example, is a result of the chemical activities carried out by the living beings. The fossil fuel in the lithosphere is formed by the decompositions of the dead organism. Our earth has the most diverse conditions for the supporting life. Everything that we have around us and all the resources that we use from our environment. The most unique things about our environment is that is not static. It is very dynamic. It consists of living and non-living elements. Our environment work in a strong interdependence with all the elements. Our environment provide for the basic needs like food, air, water, shelter and suitable temperature to all living beings. However, human activities like cutting of forest and polluting river have increasingly harmed our environment. अब जो बायोस्फीयर है वो एक इसमें वो है कि लिविंग थिंग्स ऑन आवर प्लेनेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन आवर प्लेनेट, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बायोस्फीयर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, चाहे बड़ा से बड़ा वेल हो या छोटे से छोटा जो भी है उसके लिए सबसे ज़रूरी नीड जो है वो है दिस इज़ द स्फेयर which interact with all the other spheres and depended on them for survival. Or scientists believe that between 3 millions and 30 million species might exist on this earth. वैसे तो साइंटिस्ट जो है ये बिलीव भी करते हैं कि इस पृथ्वी पे इस बायोस्फीयर पे 3 मिलियन से और 30 मिलियन तक जो जीव है वो है, लेकिन पहचान जो है वो सिर्फ 1.3 मिलियंस की हो पाई है. काफ़ी इतने छोटे छोटे भी जीव हैं कि जिन्हें अभी तक साइंस नहीं खोज पाया है, इतने छोटे भी हैं, लेकिन ये वैज्ञानिकों का मानना है. और सबसे बड़ी बात है कि जो भी अर्थ पे जो भी जीव जंतु है वो एक दूसरे पे डिपेंडेड है. जो चैन है वो चलती है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है. और सबसे बड़ी बात है कि आवर अर्थ हैज़ द मोस्ट डाइवर्स कंडीशन फॉर द सपोर्टिंग लाइफ. ये जो हमारी पृथ्वी है सबसे बड़ी डाइवर्स कंडीशन में है कि अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है. और हमारे चारों तरफ कई ऐसे रिसोर्स है जो हम उनका यूज़ करते हैं, जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं. कई हमें फॉसिल फ्यूल्स जो मिलते हैं लिथोस्फीयर में, वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. ये डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म का से बना हुआ होता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो स्थिर है और एक डायनेमिक है कि डायनेमिक है. ये इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स. आवर एनवायरनमेंट वर्क इन ए स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस विथ. हमारा जो एनवायरनमेंट है निरंतर जो है इस तरह का है कि जिसमें हमें जो चीज़ें चाहिए, जो बेसिक नीड्स जो हमारी है, जैसे कि फूड, एयर, वाटर, शेल्टर और अपने लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है, वो हम अगर किसी अदर प्लेनेट पे जाके रहेंगे तो हम वहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे. बिकॉज ऑफ जो अर्थ जो है ये हमारे इसका जो एनवायरनमेंट है वो हमें हमारी लाइफ सपोर्टिंग है, हमें सूटेबल करने वाला है. जो हमारी बेसिक नीड्स है वो कम्प्लीटली ये पूरा करता है. लेकिन
कुछ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो गलत एक्टिविटीज़ है, लाइक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, पॉल्यूटिंग रिवर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हम जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा हमने जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है, उससे हमें कई हार्मफुल रिजल्ट्स जो मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं कि हमारी प्रकृति जो इतनी खूबसूरत है, जिसने हमें इतना कुछ दिया है, हमें सर्वाइव करने के लिए दिया है, जो ये जो अर्थ है, जो ये बायोस्फीयर है, तरह से है, ये हमारा एक तरह से घर है। ये जो 4 लेयर्स है वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, हमें यहाँ सर्वाइव करने के लिए, हमारी लाइफ के लिए, ये लाइफ के लिए इतनी ज़रूरी है। उसके बाद में भी हमें इनकी केयर नहीं है, बिकॉज ऑफ हम ऐसे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि हमें पेड़ों की कटिंग जो हो रही है, जो कल कारखाने जो चलन से उनसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, और जैसे रिवर्स जो गंदी हो रही है, इवन बहुत से ऐसे काम जो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed our chapter. Thanks for watching this video. Stay home, stay safe. Goodbye.